Congratulations to Australia. They made a semi-final again, and they are aiming for their fourth World Cup. And this time it will be a new captain. It will be Alyssa Healy or Talia McGrath. We don't know if Alyssa Healy will play, but they are showing that even if Meg Lanning, like a legend, is not there, even if Alyssa Healy is not there, it does not really make any difference to this team because they have the depth. Annabelle Sutherland bowling that last over, Megan Schutt bowling, Ash Gardner always chipping in, Ellis Perry, even without bowling, she's always contributing in some way. She's not even bowling. मतलब ये लेजेंडरी टीम है रियली. मतलब कि आई थिंक स्पोर्ट्स में इतना डोमिनेटिंग टीम कोई भी और स्पोर्ट्स में भी नहीं होगा जितना ऑस्ट्रेलिया वुमेन. Just think, Ellis Perry did not bowl. Hello guys and welcome to Cricket Caviar. What a crushing loss for India today, and we are all sad. India's hopes now lie on New Zealand losing to Pakistan, and even though Fatima Sana Sheikh is coming back for Pakistan, the hopes are really slim because New Zealand is a really good side. And आज यार आकाश जो मैच रहा मतलब कि शफाली actually gave us a very good start, and I think our batters got a little bit of head start and they got to relax a bit, but they were conserving wickets for far too long. In middle there was a phase of 5 overs 25, and Deepti Sharma missed out on some full tosses. They were not able to dispatch some easy balls, and Harmanpreet later gave us a very fighting chance. And लास्ट में ऐसा लग रहा था आकाश लास्ट ओवर में 14 रन चाहिए तो मे बी वी कुड हैव वी वर वेरी वेरी so close yet so far it's that case again. And 54 of 47, you really need to question if a batsman is playing the full innings, should she have won the game for India? Because we saw what Australia did. They didn't rely on a single batsman. Everyone played their parts, from Grace Harris, who was a makeshift opener, and Ellis Perry finishing off in style. Phoebe Litchfield का लास्ट बॉल पे छक्का वो जावेद मियादाद वाला छक्का जैसा प्रूव हो गया. मैं उस समय वही सोच रहा था. बट आकाश, व्हाट्स योर ओवरऑल reaction on the game and express your disappointment? So one thing, Australia is a fabulous team. So in women's cricket, Australia is like you cannot defeat. They're just like a next level team who is better than the rest. Like all other teams are there, but there is Australia. But what I feel is बहुत जगह पे ना इंडिया ने बहुत गलतियां की. Like मुझे समझ नहीं आया कि why did Richa Ghose go for a suicidal run out? मतलब क्या फर्क पड़ जाता अगर एक बॉल डॉट चला जाता वहां पे. मतलब it was not कि कोई बॉलर है उस एंड पे, right? Richa Ghose is a batter and she is there in that end. Why did she go for that suicidal run out? Then like that singles of Harmanpreet, why not keep the strike? Like why not keep the strike when you know that there is not someone else who can take the game from here? It is only you. नहीं है कोई और, ये दिख रहा है. उसके मतलब there are some portions I think मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से खेला almost वैसे ही था. मतलब 15 overs तक I think both have the same scores. Yes. Last 5 overs Australia were ahead, India were not. India couldn't catch up, but 15 overs तक Australia also played like almost runnable. India ने भी खेला similar. 7 रन का रन रेट या 6.57. तो दोनों ने पिच इतना आसान नहीं था, वो मानना पड़ेगा. पिच इतना आसान नहीं था, बट स्टिल थोड़ा गेम अवेयरनेस की कमी थी इंडियन टीम में इन द लास्ट. एक्चुअली मतलब द पॉइंट्स यू आर सेइंग ना, जैसे लास्ट ओवर में हरमनप्रीत का वो सिंगल भागना या फिर श्रेयांका का वो वाइड बॉल पे सिंगल नहीं लेना, एंड मतलब नहीं लेना, हाफ हार्टेड दे गॉट स्टक ऑन द क्रीज. मतलब वो रन आउट भी हो गया. मतलब पूरा कॉमेडी ऑफ एरर्स चल रहा था. फिर वेस्ट इंडियन वो थर्ड अंपायर वो भी पूरा जूम करके देखे जा रही है कि क्या हुआ. सो या आई मीन गेम अवेयरनेस वाज लैकिंग. वहां पे एक चीज ध्यान दिया तुमने, वहां पे एक चीज ध्यान दिया, देयर वाज अ डिफरेंट कैमरा बीच में. दैट कैमरा टर्न्ड ऑफ, लाइक द फीड केम एट कैमरा 3 नॉट अवेलेबल, बेसिकली द अदर साइड वाला जो. एंड एक्चुअली श्रेयांका का मुझे लगता है कि उतना टाइम अंपायर ने इसलिए लिया क्योंकि दूसरे एंगल से ना ऐसा लग रहा था कि पैर का कुछ पार्ट पीछे है.
क्योंकि मैं जब देख रहा था मुझे भी लगा, बट वो दूसरे एंगल से नहीं लगा, बट वो हम्म कैमरा नहीं काम किया था, तो उसने पूछा था इज द अदर एंगल अवेलेबल, तो हम्म उन्होंने बोला कि नो वी हैव दिस एंगल्स अवेलेबल। एंड या मैन एक्चुअली यू आर राइट, मतलब कि जो शफाली ने स्टार्ट कर दिया, एक्चुअली वी वेर अहेड इन द पावर प्ले बिकॉज उनका जो उनके आज एलिसा हिली नहीं खेल रही थी, तो एलिसा हिली इज अ बिग बिग फैक्टर फॉर ऑस्ट्रेलिया। एंड ग्रेस हैरिस इज नॉट नोन एज एन ओपनर, आई थिंक यूपी वॉरियर्स के लिए शी प्लेज एज अ फिनिशर, हर रोल इज ऑफ दैट ऑफ अ फिनिशर, but she opened and she was okay. She scored 40 or 41 balls. And Renuka Thakur actually bowled a beautiful spell. She was swinging the ball. I अमेजिंग। thought I thought Megan Schutt will also get that swing, but she did not get that swing. But I think where that game really got away, I think Smriti Mandhana's. I think India could have got even more far ahead in the power play. या बिकॉज दैट स्टार्ट फ्रॉम स्मृति मंदाना, मतलब ठीक है यार, उसको नेशनल क्रश हम बुलाते हैं, वाइस कैप्टन है, एंड शी इज द मोस्ट सिक्स कंसिस्टेंट ऑफ बैट्समैन. 12 6 of 12 from an opener, not expected. Yeah. Like Especially you're not playing at a tonight. 50 strike It's a rate. must win game. It's a must win. Yeah. And you are battling for net run rate. And you can't be having 6 balls. Especially, ठीक है यार, you got out versus New Zealand. मुझे लगता है वो न्यूजीलैंड वाला डिसमिसल प्लेड ऑन हर माइंड टू मच, बिकॉज शी थॉट कि मैं वो मारते हुए आउट हो गई, बाउंड्री पे मेरा कैच हो गया. तो उसके बाद शी टोटली वेंट इनटू द शेल थ्रू आउट द टूर्नामेंट. आई फेल्ट लाइक शी वाज इन दैट शेल, शी वाज नॉट एक्सेलरेटिंग. एंड उसके बाद जेमीमा का जो विकेट था, आफ्टर वी हैव प्लेड आउट द पावर प्ले, जेमीमा जो डीप में, इट वाज अ ब्रिलियंट फील्डिंग, वाज आल्सो अ बिग डिफरेंस आकाश. मतलब बहुत अच्छे Yeah. कैचेस लिए ऑस्ट्रेलिया ने, इवन दो दे ड्रॉप्ड हरमनप्रीत, दे स्टिल टुक सम ब्रिलियंट कैचेस. एंड उसके बाद मुझे लगा वो 5-6 ओवर का जो फेज था ना, इनको समझ नहीं आया, बिकॉज दे कांट रिलाई ऑन एग्जैक्टली. क्या हुआ कि ऋचा घोष पे इनका रिलायबिलिटी फैक्टर बहुत कम है. ये लोग श्योर नहीं थे कैन वी रिलाई ऑन ऋचा घोष टू फिनिश अ गेम लाइक दिस, सच अ बिग गेम. तो दे जस्ट टुक द, दे ट्राइड टू डू द धोनी, दे ट्राइड टू टेक द गेम डीप. बट मुझे लगता है वहां पे यू कांट मैच ऑस्ट्रेलिया फिनिशिंग, यू कांट मैच 5 overs 50. Yeah. तो मुझे क्या लगता है कि वो 3 ओवर एटलीस्ट, ठीक है तुमने डिफेंस किया, बट 10th ओवर के बाद ना थोड़ा यू शुड हैव स्टार्टेड टू एक्सेलरेट अ लिटिल बिट, जो आया ही नहीं. मतलब कि 13th 14th ओवर के बाद वो एक्सेलरेशन आया जो हमें एक्चुअली 10th ओवर ऑनवर्ड्स ही चाहिए था. तो वहां पे मुझे लगता है Yes. हम गेम हार Definitely. गए थोड़ा. हम्म हाँ डेफिनेटली यार, मतलब अ, इनको बीच में ना, मतलब इन्होंने एकदम ही रने बॉल खेल लिया, मतलब हम्म बीच में इनका वो हो गया पूरा, एकदम ही रने बॉल खेल लिया, और रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और वो जो जब रिक्वायर्ड रन रेट एक बार बढ़ता चला जाता है, वो कैचअप करना इतना आसान नहीं होता है। राइट मतलब राइट स्पेशली इन दीज गेम्स विद दिस काइंड ऑफ पिचेस, जहां पे बॉल राइट बैट में नहीं आ रहा है, इस पिच राइट. में रिक्वायर्ड रन रेट का कैच करना बहुत मुश्किल है। और आकाश, यहाँ पे सिक्सेस मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. ओनली शफाली ने 6 हाँ। मारा इंडिया की तरफ से. मतलब बाउंड्रीज आर सो बिग. देख ऑस्ट्रेलिया में पेरी ने मारा, आई थिंक लिचफील्ड ने लास्ट बॉल पे मारा, तो उनके पास वो पावर हिटर्स थे, बट इंडिया के पास वो पावर हिटर्स नहीं थे. समहाउ हरमनप्रीत हैज आल्सो लॉस्ट अ लॉट ऑफ दैट सिक्स हिटिंग एबिलिटी जो स्टार्टिंग ऑफ द करियर में उसके पास था. बिकॉज मैं देख रहा था कि जब 13 of 3 भी चाहिए था, शी वॉज ट्राइंग टू पियर्स दैट कवर का गैप, जहां पे उसने वो सिंगल ले लिया जो नहीं लेना चाहिए था. हम्म। बट मुझे लगता है वो सिक्स हिटिंग एबिलिटी इंडिया के पास नहीं था. तो ये एक मिसकैलकुलेशन था कि उन्होंने सोचा कि हम लास्ट 5 overs में 53 कवर अप कर लेंगे. वो नहीं कवर अप नहीं कर कर। सकते आप, वो कवर अप नहीं कर सकते आप. तो आपको मिडिल ओवर्स में ही एक्सेलरेशन स्टार्ट करना चाहिए था. एंड दैट्स वेयर आई थॉट अगेन दीप्ति, मतलब दीप्ति को मैं ब्लेम क्या करूं, क्योंकि हरमनप्रीत एक्चुअली वाज प्लेइंग लेस देन रन अ बॉल, दीप्ति वाज एटलीस्ट प्लेइंग या रन अ बॉल. या बट मतलब कि वहां पे वही है, कुछ फुल I think that टॉसेस was जो. the game plan at that point of time, because both हम्म were playing like at just run a ball. That was the game plan of India. हम्म And दीप्ति ने बहुत, I think full tosses दीप्ति को ही मिले हैं। हाँ, 3 फुल टॉसेस मिले, एक नो बॉल हो गया उसमें से, बाकी दो तो नो बॉल भी नहीं. और हाँ वो ऐसे फुल टॉस नहीं थे कि लो फुल टॉसेस हैं, तो प्रॉपर फुल हाँ. टॉस जिसको मारा जा सकता था, राइट और जिसको राइट. कहीं भी मार सकते थे। कहीं एनीवेयर भी यू कैन मार हिट सकते हो, मतलब यार एग्जैक्टली उसने सिंगल लिया 3 ओवर में. एंड मतलब शी गॉट पिस्ड, उसको एक वाइड भी नहीं दिया अंपायर ने. मतलब लास्ट में उसके लिए थोड़ा बुरा फील हो रहा था. बट बाद में लास्ट ओवर वाज कॉमेडी. मतलब 4 रन बनाए इंडिया ने यार. आई वाज सो होपफुल, लाइक माय एंटायर फैमिली वाज वाचिंग दिस कि 14 रन्स में क्या होगा, और क्रीज पहुंचने तक ही सब आउट होके जा रहे हैं.
and Harmanpreet is stranded at the other end, not out 54 of 47. आई मीन मुझे लगता है आकाश यार, जब कोई नॉट आउट है तो यार वी शुड हैव बीन ऑन द विनिंग साइड, क्योंकि हम देखते हैं नॉर्मली इंडिया हारती है जब हरमनप्रीत का कुछ रन आउट हो जाता है, कुछ हार्ट ब्रेकिंग वे में वो आउट हो जाती है। बट आज हरमनप्रीत आउट भी नहीं हुई, उसका लक भी अच्छा चल रहा था। मे बी 54 और 47 से बेटर करना चाहिए था। वी कांट रियली कंप्लेन बिकॉज शी इज द ओनली वन जो लास्ट में उसने ऐश गार्डनर और सोफी मोलिन्यू को भी अटैक किया। बट दैट वन ओवर आकाश फ्रॉम मेगन शूट which was almost a wicket Yeah, maiden in the death over. That yeah, was it was. amazing. कैसे वो यॉर्कर इन स्विंगिंग यॉर्कर डाल रही थी मेगन शुट यार। और आई थिंक दीप्ति का भी उसी ने लिया विकेट, या आई थिंक नहीं, रिचा को रन आउट किया उस ओवर में, रिचा रन हाँ आउट हुई। हाँ, एंड ऋचा उसके का। बाद वो भी दो बॉल्स मतलब डॉट बॉल्स ही थे। एंड उसके बाद आई मीन हरमनप्रीत को भी उसने हाँ, कंटेन मेगन शूट का ओवर के पहले वाला ओवर में इंडिया ने स्कोर किया, तो ऐसा हाँ लगा कि यहाँ से मोमेंटम शिफ्ट होगा, लेकिन उसके बाद राइट। मेगन शूट आई एंड देन वो एक ओवर प्रॉपर, मतलब इट वाज जस्ट ऑलमोस्ट ए मेडन। इट वाज एंड दैट मेड द डिफरेंस बिकॉज अदरवाइज इट, अगर 6 रन भी आ जाता तो इंडिया को 8 रन हाँ चाहिए होते, एंड दैट वुडंट हैव बीन लाइक दिस, मतलब कि ऐसा नहीं होता लास्ट ओवर जैसे हुआ ना। वो 8 रन निकल जाते भाग भाग के, या फिर एक बाउंड्री और आ जाता कहीं से। बट वही 14 वाज दे वर जस्ट डेस्परेटली स्विंगिंग फॉर द फेंसेस। मतलब वही है यार, इंडियन वुमेन मुझे लगता है ना हमेशा अपने आप को एक ऐसे पोजीशन पे ले आती है व्हेन देयर इज अ डेस्परेट सिचुएशन एंड दे नीड टू गो हिट ऑल आउट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग द गेम इन द मिडिल ओवर, विच ऑस्ट्रेलिया डू। मतलब कि टालिया मैगरा का जो मिडिल ओवर्स में इनिंग्स था, तो इट वाज बाकी लोग अगर स्लो खेल रहे हैं तो शी वाज एटलीस्ट कॉम्पनसेटिंग फॉर दैट, कि नहीं मैं एटलीस्ट रन बॉल तो रखूंगी, रन बॉल से ऊपर रखूंगी ओवरऑल रेट। एंड लास्ट में उनके विकेट्स बचे थे, पेरी इतनी की बैट्समैन है, वो लास्ट के लिए बची या हुई थी, तो उसने मतलब एक्सेलरेट कर दिया, लिचफील्ड ने एक्सेलरेट कर दिया। बट इंडिया का मिडिल ओवर वो हुआ नहीं, एंड विकेट्स भी जो बचे थे वो मतलब ये ट्रस्ट नहीं करते ना। आज आई थिंक हरमनप्रीत ने वही बोला है प्रेजेंटेशन में कि उनका ऑस्ट्रेलिया का क्या है कि दे आर फ्लेक्सिबल, अगर एलिसा हिली नहीं खेल रही है तो नो इशू, हमारा कोई और बैट्समैन खेल लेगा, वो भी वैसे ही खेल लेगा। बट इंडियंस दे आर रिलाइंग ऑन 2-3 पीपल। मतलब दिस इज अ स्टेटमेंट फ्रॉम हरमनप्रीत विच इज वेरी शॉकिंग। तो दिस इज मतलब रॉन्ग, राइट? दिस इज हम्म रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग फ्रॉम द टीम मैनेजमेंट। तुमको बनाना है वो हम्म वो पीसेस की कहाँ पे किसको फिल करना है, वो तुम्हारे पास होने चाहिए। राइट। मतलब even after conducting WPL, even after हम्म getting so many a pool of players, still you are saying this, then it is wrong. हम्म एब्सोल्युटली। मतलब यार तुम टूर्नामेंट में आके ऐसे नहीं बोल सकते कि वी आर रिलाइंग ऑन 2-3 पीपल। मतलब तुम इनडायरेक्टली तो वही बोल रहे हो ना कि ऑस्ट्रेलिया वैसी टीम नहीं है विच रिलाई ऑन 2-3 पीपल। मतलब यू आर अ टीम हाँ, विच रिलाई ऑन 2-3 पीपल। एंड हरमनप्रीत ऑल्सो मुझे लगता है वो भी बहुत ज्यादा प्राइस पुट अप कर देती है अपने विकेट पे। मतलब उसको लगता है कि मुझे एंड तक रहना है, एंड मतलब और कोई कुछ कर नहीं पाएगा, विच इज नॉट फेयर टू रिचा घोष। मतलब रिचा घोष हैज बीन देयर, और पूजा वस्त्राकर वाज आल्सो प्लेइंग वेल। ये लोग भी काफी अच्छा खेलते हैं मतलब व्हेन दे हैव द चांस। तो इट वाज नॉट फेयर आई फेल्ट। मतलब व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मतलब डज शी पुट टू मच yeah, प्राइस? definitely it is not fair. So you know, like, so Richa Ghosh can hit it, हम्म so it will need her one game to come into the zone. That हम्म might have been this game. Like, हम्म see, I think she sacrificed her wicket because Harman wanted to come and strike that ball. यस यस There was no single on that ball, never. या So so I feel that confidence, that captain should have the confidence on Richa Ghosh if she's playing, right? इफ शी इज So Pooja प्लेइंग या Vastrakar, yeah, हाँ Pooja Vastrakar, she can hit the ball. We know that. यस So I think Harman had trusted Pooja हम्म today. हम्म Harman trusted Pooja more than Richa. एक्चुअली इन्होंने वो फीबी लिचफील्ड को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया। उनको लगा नहीं था ये लोग हाँ, साइमंड्स और माइकल क्लार्क जैसे डायरेक्ट हिट मार पाएंगे। वो भी उनको लगा हाँ हो जाएगा, सिंगल ले लो। भाई उसने मार दिया स्टंप्स, लेकिन मतलब दैट आल्सो कम्स फ्रॉम लॉट ऑफ प्रैक्टिस। उसने मतलब टाइम लेके मारा है, उसने टाइम हाँ लेके प्रॉपर एम करके एम टाइम लेके एम मारा है। करके मारे हैं। फील्डिंग में तो बहुत डिफरेंस है, एक्सेप्ट फॉर डार्सी ब्राउन विच इज आई थिंक अ वीक लिंक ऑफ ऑस्ट्रेलियन टीम, क्योंकि उसका बॉलिंग भी उतना अच्छा नहीं रहता। फील्डिंग में भी उसने ड्रॉप किया। आई थिंक एवरी अदर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर इज जस्ट टू गुड मतलब ऑन द फील्ड। पेरी ने भी बाउंड्री पे मतलब कि अपना एथलेटिसिज्म जो दिखाया, अमेजिंग। अमेजिंग अमेजिंग। इंडियंस का क्या लगता है, एथलेटिसिज्म थोड़ा कम है कुछ? जैसे दीप्ति शर्मा, रिचा घोष का मैंने देखा है, ऑल्दो रिचा घोष हैज केप्ट वेल ओवरऑल, बट या क्या फील्डिंग स्किल्स मतलब कि ओवरऑल क्या लगता है तुझे?
you have followed more, so I'll ask you. So fielding skill, I feel yes, Indian fielding is not that strong as the Australia fielding, and Indian fielding needs to improve. So there are some fielders who are really good, but there is Yeah, a lot of gap like in the skill set of what good like Indian fielders and normal Indian fielders. Like there is a difference between within the team. So there are yes, very good like Radha fielders. Yadav, Jemima, they are really good fielders. I mean, Radha these two are. Yadav, Jemima is very good fielder. So earlier this Harleen Deol was a very good fielder. Harleen was a very good fielder. Yeah, she was a good fielder. So yeah, Hmm. so we have some weak links. So we also left. I think a catch was dropped by Deepti. That was a Hmm. regulation catch at point. At point, you will get Hmm. those catches only. Hmm. So You if you were are saying sending that it, Radha should have been there, and but you cannot have her everywhere. but yeah, ultimately it all comes down to losing so badly to New Zealand, I think. क्योंकि ये मैच तो Yes. expected ही था कि हम हारेंगे, but न्यूजीलैंड से इतना Like, but this match we खराब. played well. Actually, if you see, Yeah. we bowled well, we batted well, everything Hmm. was fine. So there was a margin of error. That's fine. Hmm. But we shouldn't have lost the first match against New Zealand so badly. We shouldn't have lost it actually. Yeah. So I think India Hmm. could have won from New Zealand. And that was just because India was playing the first match of the First tournament match. Hmm. and they didn't feel confident. And the Hmm. second match against Pakistan, I don't know why there was no intent to up the net run rate. Yeah. If you have seen the match, that match, like we were winning it comfortably. We could have gone for increasing net run rate, which could have been Yeah. like beneficial at some point. So now it is about if New Zealand loses, that is I highly think only impossible. we played that Sri Lanka game with lot of intent. Apart from Yes, that, there yes. was no other game where we played with, like we deserve to be semi-finalists. We didn't make that feel to our fans. Like We didn't, this yeah. moment. Only the Sri Lanka match we played with a lot of intent. Hmm. And Hmm. so I think And at and some आकाश तूने points we यार were. न्यूजीलैंड को उस दिन हरवा दिया ऑस्ट्रेलिया से. You were supporting Australia. I have a complete. No, no, I was not supporting Australia, but New Zealand was not going to win. So if they're not going to win, they'll lose badly. So अच्छा. it cannot be like winning, losing by a small margin. That match was either New Zealand could like if New Zealand have beat Australia, then it is fine. नहीं तो हारो तो बहुत अच्छे से हारो था कि नेट रन रेट इतना इफेक्ट हो ना कि कहीं ना कहीं इंडिया को मदद मिले. लेकिन फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गया तो वो मैच का तो फायदा ही नहीं हुआ अपन को. हाँ. लेट्स होप कल कुछ मिरेकल हो जाए. मतलब पाकिस्तान न्यूजीलैंड में नहीं एंड हो सकता. नहीं हो सकता ओनली. पाकिस्तान हाँ. पाकिस्तान न्यूजीलैंड इज आई थिंक पाकिस्तान उतनी अच्छी टीम नहीं है वुमेन्स क्रिकेट में. राइट सो दैट वी नीड टू एक्सेप्ट. सो एक्सपेक्ट करना कि वो न्यूजीलैंड को हरा दे, आई डोंट नो. लेट्स सी, लेट्स होप. सो आई But विल बी होपिंग कि what a पाकिस्तान हरा moment दे. that in a tournament that India is hoping for a Pakistan win. मतलब our arch enemies, we are hoping for them to win. ऐसा एक बार आई थिंक या पाकिस्तान ने इंडिया मेंस पे किया था कोई एक वर्ल्ड कप में वेयर दे वांटेड इंडिया मेन टू विन, बट इंडिया वो हार गया था, इंग्लैंड से हार गया था. धोनी took lot of time in 2019 World Cup. But यार फातिमा सना, I really want her to make an impact because unfortunately she missed one match. She had to go. Her father passed away and she has come back yesterday only. I don't know what kind of mental frame she will be in, but let's hope that Pakistan women pull a great performance tomorrow. ऑल आईज ऑन पाकिस्तान वुमेन. सो द मैच इज हाँ. टुमारो, राइट? मैच इज टुमारो. और या दूसरे ग्रुप में तो आई थिंक इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज का मैच होने वाला है विच इज गोइंग टू डिसाइड हु विल बी द सेकंड सेमीफाइनलिस्ट. या बट कुछ लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को कोई भी टीम चैलेंज कर सकते हैं. मतलब आज इंडिया ने थोड़ा चैलेंज तो किया है एटलीस्ट. और तुझे लग रहा है कोई और इंडिया ने टीम है? काफी चैलेंज किया. इंडिया ने काफी चैलेंज किया बिकॉज आज. ऑस्ट्रेलिया, सोफी मोलिन्यू और टालिया मैग्रा भी अभी वही बोल रहे थे कि इंडिया मैच इज अ बिग मैच फॉर अस, वी मार्क इट इन आवर कैलेंडर्स. एंड मतलब वो भी एक्चुअली लुक फॉरवर्ड कर रहे थे टू द चैलेंज ऑफ प्लेइंग इंडिया. उनको भी थोड़ा डर बट तो लग इंडिया रहा था. वुमेन्स में भी आई थिंक, इंडिया वुमेन्स में भी आई थिंक द चेंज शुड कम दैट दे एक्चुअली रिलाई ऑन गुड हिटिंग कैपेबिलिटी जो अभी मिसिंग है. देयर आर ओनली अ कपल ऑफ प्लेयर्स विद गुड हिटिंग कैपेबिलिटी सो दैट यू कैन स्कोर like at a good rate, which actually I think in women's cricket only Australia does that and England sometimes.
scoring at a good rate. What will be the positive note of this World Cup, Akash, according to you? One was Shriyanka Patil bowled, but today Shriyanka was given the tough overs to Ellis Perry and Yeah, RCB to RCB. I knew that Perry would know more about Shriyanka than other batsmen in the world. She absolutely crushed. That was a big battle, actually. Matlab, uh, Perry actually smashing 14 runs off that Shriyanka over. that is the Still, drawback of WPL. that is the drawback of WPL. Draw- Yes. But apart from that, Shriyanka has shown brightly. Matlab, she has done really well for India in this tournament. And what are the other bright spots you are taking? मतलब मेरे लिए तो और कुछ है नहीं. हरमनप्रीत did what तो हरमनप्रीत इस वर्ल्ड does. कप में इंडिया का कुछ कुछ नया ऐसे नहीं दिखा है. Hmm. This is the same old team which has been playing matches, and Hmm. like there is nothing exciting which is coming up. Like Hmm. मतलब कुछ ऐसा अलग सा टीम में कुछ नया प्लेयर आया एंड हु इज चेंजिंग द गेम, हु इज टेकिंग गेम इन हर ओन हैंड्स, वो नहीं हो रहा है. Like it, we are depending on Harmanpreet Kaur, Shefali Verma, Smriti Mandhana has been always there. तो वो चेंज आ ही नहीं रहा इस टीम में. मतलब कुछ ऐसे कोई नया प्लेयर आया एंड वू टेक द गेम अवे फ्रॉम एवरीवन, वो Yeah. चीज नहीं हो रहा है. तो वो चीज एक्चुअली नीडेड है वुमेन्स टीम में. अच्छा, वो स्पिनर का क्या हुआ आकाश, जो मुंबई इंडियंस, आई थिंक सादिया इशाक और समवन, व्हाई इज शी नॉट इन इंडियन टीम? आई वांटेड टू, व्हाट हैपेंड टू हर? Yeah, डू यू हैव एनी आइडिया? लाइक I think because they went with Asha Sobna, right? Asha Shobna, who is again a very poor fielder, dropping very Yeah, lollipop and then catches. लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए they have Radha Yadav. राधा यादव को खिलाना चाहिए था. मतलब आज हरमनप्रीत was actually praising her because she came out fighting. I mean, she took wickets also today. She took Yeah, catches also. She was everywhere in the field. And she was not supposed to play the match also. It was because Asha got injured that she got the yeah. game. So she was telling that we need such characters. But you are not playing these characters na सारे games. तुम तो खिला नहीं तो रहे but हो. उस पॉइंट पे मेरे को लगा the over that Radha got wicket, she Hmm. didn't get the next over at that point of time. Hmm. Wow. मतलब Good observation. उसको कंटिन्यू करना चाहिए था क्योंकि शी वाज बॉलिंग गुड. सिर्फ फर्स्ट बॉल उसका खराब था. Hmm. उसके बाद अगले 5 बॉल में 3 चांसेस क्रिएट किए थे उसने विकेट के. 3 चांसेस, Hmm. Right. जिसमें से एक ड्रॉप हुआ, एक नो प्लेयर लैंड पे गिरा एंड एक स्टंपिंग हुआ. 5 बॉल में 3 चांसेस क्रिएट किए, स्टिल उसको नेक्स्ट ओवर बाद में मिला. हम्म. वही आई थिंक बॉलिंग स्ट्रेटेजी भी मतलब थोड़ा देखना पड़ेगा इंडिया को. इवन अरुंधति रेड्डी, मुझे लगा आकाश, शी गॉट द बॉल टू लेट. मतलब कि when the ball was हाँ, swinging, when Renuka Thakur was bowling, the ball was swinging. I think Arundhati Reddy could have bowled some overs there, but they went with Shriyanka Patil, opened the bowling. They in fact put every best bowler in the power play. कि मतलब श्रेयांका बॉलिंग कर लो, हाँ. रेणुका बॉलिंग कर लो, पावर प्ले में हमें रन्स कम देना है. बट बाद के लिए उन्होंने कुछ प्लानिंग ही नहीं किया था कि कौन हमारे बॉलर्स मतलब बॉलिंग करेंगे. वही हुआ मतलब. तो बॉलिंग स्ट्रेटेजी पे थोड़ा फोकस करना चाहिए था. तो वही है कि हम्म. बिट्स एंड पीसेस में मैच में हम बहुत बार आगे थे, बट अल्टीमेटली वी लॉस्ट इट. Yeah, sad loss for Indian team, and but congratulations to Australia. They made a semi-final again, and they are aiming for their fourth World Cup. And this time it will be a new captain. It will be Alyssa Healy or Talia McGrath. We don't know if Alyssa Healy will play, but they are showing that even if Meg Lanning, like a legend, is not there, even if Alyssa Healy is not there, it does not really make any difference to this team because they have the depth. I mean, Annabelle Sutherland bowling that last over, Megan Schutt bowling, Ash Gardner always chipping in, Ellis Perry, even without bowling, she's always Yeah. contributing in some way. She's not even bowling. मतलब ये लेजेंडरी टीम है रियली. मतलब कि आई थिंक स्पोर्ट्स में इतना डोमिनेटिंग टीम कोई भी और स्पोर्ट्स में भी नहीं होगा जितना ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स. Just think Alice Perry did not bowl. Like या think मैंने what the depth in bowling they have. इतना depth bowling क्योंकि एलिस पेरी को जरूरत ही नहीं पड़ रहा है. और Akash, we were discussing, I think someone in the group also raised that Alana King is such a good leg spinner. She is also not playing Yes. because they are backing Georgie Wareham, who's also coming as a pinch hitter. मतलब it's very flexible setup. ऐसा कुछ भी fixed नहीं है कि ये आएगा इस टाइम पे. They are sending जिसको जहां मन है वो चले जाओ. मतलब it's very flexible and still they are managing to win games, which is amazing.
So Yeah, yes. thanks Akash, thank you for joining, and guys, please subscribe our channel Cricket Caviar. We'll be covering more of Women's T20 World Cup, and it's a sad day for Indian fans, but good cricket match. And as a cricket lover, I really enjoyed this match. And we'll be seeing more of these matches in the knockout stages now. And thank you, guys. Take care. Bye. Good night.